Everyone, welcome to O-Levels Physics P4 workshop. ठीक है, we'll discuss some past paper questions. मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा कि आप लोगों ने जब कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो ना P4 का, तो किन चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. So first of all, बेटा, read the instructions carefully. आपको हर स्टेप पे उसने गाइड किया होता है कि what we are supposed to do. So a student measures the spring constant K of a spring uses two different methods. The spring constant K of a spring is a measure of the stiffness of the spring. The larger the spring constant K, the more difficult the spring is to stretch. Method 1. The student measures the unstretched length of the spring to the nearest 0.1 centimeter. A full-size diagram of the spring is shown in figure 1.1. Measure the unstretched length L0 of the spring to the nearest 0.1 centimeters. Do not include the loops at the ends of the spring in your measurements. So we have to use a meter rule for that purpose. So सबसे पहले आप बेटा you're going to use a scale और आप अपने scale को you're going to place it like this. So let's say ये 10 पे है, ये वाली जो रीडिंग है ये 10 है, ये 10 है, ये 9 है, this is 8, this is 7, this is 6, this is 5 और ये आपके पास 5.2 and this is going to be 5.4. ठीक है. So I am just assuming अब आपके पास जो भी मीटर रूल होगा आपने मीटर रूल से इन दो पॉइंट्स के दरमियान की you have to measure this length from the scale. So once you do that, ये वाली जो लेंथ है दिस इज योर एल नॉट. लेट्स से ये 5.4 पे और ये 10 पे है. सो योर लेंथ is going to be 10 minus 5.4. So let's say 10 minus 5 it's 5 and 5 minus 0.4 it's 4.6 centimeter. So this is how you're going to measure the length. So ये तो आ गया पहला बेसिक कि you were just supposed to measure its length. अब मार्किंग स्कीम में आपके पास जो एक्चुअल इसका आंसर है एक्चुअल आंसर शुड बी 5.5 सेंटीमीटर. अब ये मैंने क्योंकि खुद से मतलब वो अज्यूम किया था तो मैंने ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया कि अगर आप स्केल से ये दो लेवल्स के दरमियान लोगे तो you just have to simply subtract those two lengths. Okay, now the student attaches the spring to a clamp on a stand, suspends a 300-gram mass from the spring. The arrangement of the apparatus is shown in figure 1.2. So we have the clamp, a spring is attached to the clamp, and a mass of 300 grams is attached to the spring. The student measures the new length L1 of the spring, which is 17.6 centimeter. Calculate the extension E of the spring produced by the mass, where E is equal to L1 minus L0. So देखो बेटा L1 की value it's already given. L1 is given as 17.6. L0 की जो actual value है वो 5.5 centimeter है. So we just have to subtract these two lengths. 17.6 minus 5.5, we get 12.1 centimeter. So beta you have to be careful about the decimal place. अब क्योंकि ये जो values है ये भी 1 decimal में given है, जो actual reading हमने measure की है वो भी उसने कहा है कि 0.1 सेंटीमीटर तक की दो 1 decimal तक, तो इसलिए E की वैल्यू भी आप 1 decimal तक कंसिडर करोगे. Calculate the spring constant K1 of the spring. Use the equation this. So अब आपके पास expression given है and you just have to substitute the value in it. E की value क्या थी 12.1, तो मैंने E की जगह उसकी value put कर दी. So 300 divided by 12.1. So what do we get? So we get 24.79. अब क्योंकि बाकी भी वैल्यूज 1 डेसिमल तक दी हुई हैं
तो हम K1 की जो round off करके we will consider the value of K1 to be 1 decimal place as well. It is important to avoid line of sight parallax error when determining the extension of the spring. Explain what is meant by parallax error and how to avoid parallax error. So what is your parallax error? If the eyesight is not perpendicular to the reading. If eyesight is not perpendicular to reading on scale. Now, how can we avoid the parallax error? So by keeping the eyesight perpendicular to the reading. By keeping eyesight perpendicular to reading. Okay. Next method 2, the student pulls the 300-gram mass down by a small distance and release it so that the mass oscillates up and down, measures the time t1 taken for 20 oscillations. The reading on the stopwatch is shown in figure 1.3. Record this time t1 in table 1.1 to 1 decimal place. अब reading है 13.58. So if I round it off to one significant, so ये 5 से अगला digit 5 से बड़ा है, so 5 में 1 add होके, so this is going to be 13.6. Now the student measures the time for 20 oscillations once more and records the time t2 in table 1.1. Calculate the mean time t for 20 oscillations. अब मीन टाइम निकालने के लिए व्हाट वी डू, मीन टाइम के लिए we add both the readings and divided by 2. So 13.6 plus 13.8 whole divided by 2. या पूरा कैलकुलेटर में पुट कर दो वैल्यू and we get 13.7. The mean period t of the oscillations is the mean time taken for one oscillation. Calculate the mean period t. अब देखो, this is the time for 20 oscillations. Time for 20 oscillations. So if you want to calculate the time period for one oscillation, so 13.7 divided by the number of oscillations. अब क्योंकि तीनों जो टाइम की वैल्यूज हैं दे आर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सो मैं इसमें जो वैल्यू कंसिडर करूंगा वी विल कंसिडर द वैल्यू टू बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर व्हिच इज 0.685. सो ये t की वैल्यू, अब आपने t स्क्वायर लेना है तो 0.685 स्क्वायर. So if you take the square of your value, we get 0.469, or you can say 0.469 second square. So calculate the value of t square, record your values in this. So we can round it off to 2 significant figure. So we can write it as 0.47. Now use your values of t square to calculate the spring constant K2. Ab again, expression given hai, you just have to substitute the value of t square. So the value of t square was 0.469. So अब आप 11.8 को 11.8 divided by 0.469, that is 25.2. Yeah, that 25.15. So if you round it off to 25.2 Newton per meter. Now explain why the value for the mean period t obtained by measuring 20 oscillations twice is
more accurate than the value obtained by measuring one oscillation twice. तो वो आपसे कह रहे हैं अगर आप एक ऑक्सीलेशन का टाइम 2 दफा मेजर कर लो या फिर 20 oscillations का इकट्ठे टाइम मेजर कर लो and then you take the average of that. So why do we do that? So basically to reduce the human reaction error, so to reduce human reaction time error in starting and stopping a stopwatch. सो बेसिकली बेटा जब आप अगर लेट्स से मैं एक ऑक्सीलेशन का वैसे टाइम लेता हूँ ना जाके वापस आने में तो मैं जब स्टॉप वॉच ऑन या ऑफ करूंगा तो उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा है ठीक है सो टू रिड्यूस ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर इन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग अ स्टॉप वॉच or to reduce the percentage error or to reduce percentage error in time. So this is your question one. Question one हम लोगों का बहुत simple आता है. You just have to read and follow the instructions carefully. So then you can just simply solve the question. Okay, now question number two. A student investigates the rate of cooling of hot water in a test tube under different conditions. The student arranges a test tube as shown in figure 2.1. So we have a test tube attached to a stand, pours 200 cm cube of cold water into a beaker. Beaker may we have cold water and in the test tube we have hot water. So lowers the test tube into the beaker of cold water until the level of the hot water in the test tube is below the level of cold water. In the beaker as shown in figure 2.2. Okay? Just give me 1 second. Yeah. Waits for approximately 30 seconds before measuring the temperature and starting a stopwatch. Okay? Now, the student measures the temperature theta of the hot water in the test tube. The thermometer reading is shown in figure 2.2. So let's just check what is this reading. So 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. So ये 1 degrees का gap है. So this is 73 degrees. Read the thermometer and record the temperature in table 2.1 at T0. तो T0 पे temperature कितना आ रहा है? 73 degrees. The student measures the temperature theta of hot water every 30 seconds for a further 180 seconds. The readings are shown in table 2.1. Complete the column headings by adding appropriate units. The time is measured in seconds. Theta is measured in degrees Celsius. ठीक है चाहे वो हॉट वाटर का टेम्परेचर है या चाहे कोल्ड वाटर है कंप्लीट द टाइम कॉलम अब वो कह रहे हैं कि हॉट वाटर एवरी 30 सेकेंड्स सो 30 सेकेंड्स के बाद 60 90 120 150 180 so you keep adding 30 degrees का gap तो you get the final book. Describe in detail one precaution that student must take to make sure that the temperature measurements are as accurate as possible. देखो अब आप you're measuring the temperature using a thermometer. So when you insert a thermometer inside a beaker, so you have to make sure that your thermometer does not touches the sides or the base of a beaker. तो एक प्रिकॉशन तो ये हो सकता है कि थर्मामीटर
thermometer should not touch sides or base of beaker or the test tube. So एक तो ये precaution आपके पास हो सकता है, ठीक है? What else precaution we have to take? So another precaution is कि we should insert the thermometer 1/3 into the beaker. Insert thermometer more than 1/3 in beaker or the tube. ठीक है? So 1/3 से ज्यादा आपने इंसर्ट करना है. फिर इसके अलावा बेटा what we can do, stir before you take a reading. So मैं ये 2-3 पॉइंट्स इसलिए stir before measuring temperature. So अगर बेशक अगर 1 मार्क का है, आप एग्जाम में 2 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है? ताकि इन केस अगर कोई गलती हो जाती है, so he will give you the mark for the correct one. So बाकी ये हमारे पास ठीक है? So बाकी just 1 second, then we okay, is it clear everyone? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर बेटा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आप लोग प्लीज जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप. आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्यूरीज ओवर देयर. सो ये कुछ पॉसिबल है जहाँ पे ये हीट से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेरिमेंट आता है और उसमें एरर्स वगैरह हमारे पास वो कोई पूछ लेता है, सो दीज आर द एरर्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. और फिर एक एरर ये भी हो सकता है when you're taking a reading from a thermometer, so avoid the parallax error by keeping the eyesight perpendicular to the reading. So that can be another point. So when taking reading from thermometer, keep eyesight perpendicular to reading. Okay, so ये चारों में से आप कोई भी बता सकते थे. The student repeats the procedure in part A and B, but with 200 cm cube of warm water instead of cold water in the beaker as shown in figure 2.4. The student's readings with warm water are shown in table 2.1. ठीक है? One of the students' readings for warm water recorded in table 2.1 is anomalous. So identify the anomalous. So he's talking about the an anomalous reading. Anomalous का मतलब ये होता है कि a reading that does not follow the trend, ठीक है? और let's see कि warm water के केस में ये readings थी test tube cooling in the warm water, ठीक है? Test tube cooling in the cold water. So but warm water may, if we look at the trend 75, 68, 63, 58, 55, gradually it's decreasing. फिर 55 के बाद 35 है और 35 के बाद 52. So ये जो reading है ये anomalous है. So you can say temperature 35 degrees Celsius at what time? At 150 seconds. So anomalous reading है temperature
150 टेम्परेचर कितना था 35 डिग्री सेल्सियस एट 150 seconds 35 डिग्री सेल्सियस एट 150 seconds. अब आपसे रीजन पूछ रहे हैं कि why this is an anomalous reading because it does not follow a trend. It does not follow trend. ठीक है? Use the temperature readings in table 2.1 to calculate the temperature decrease of the hot water in test tube after cooling for 180 seconds in both the beaker of cold water and the beaker of warm water. So temperature decrease calculate करना है for cold water. Maximum temperature शुरू में था 73, final temperature 34 है. So temperature decrease when cooling in the cold water 73 minus 34. So 73 minus 34 is equal to 39. So this is the temperature decrease. For cold water or warm water में maximum temperature 75 है और smallest temperature हमारे पास कितना है 52. We will not consider the anomalous reading. ठीक है हम मतलब फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर यूज करेंगे 75 minus 52. So that will be 23 degrees Celsius. So temperature decrease when cooling in the cold water. ठीक है और temperature decrease when cooling in the hot water. So use your answer to D2 to decide how the temperature of water in the beaker affects the rate. जहां पे rate का word use होता है वहां का मतलब है with respect to time. Rate of cooling of hot water in the test tube. State your conclusion. How temperature of water in beaker affects the rate of cooling of hot water in the test tube. So अगर मैं पहले वाले के लिए रेट निकालूं तो चेंज इन टेम्परेचर था 39 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 180 सेकेंड्स तो ये मेरे पास कितना रेट आ जाता है 39 डिवाइडेड बाय 180 0.217 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड और अगर मैं इधर का रेट निकालूं तो 23 divided by 180. So 23 over 180 is 0.128 degrees Celsius per second. So temperature decrease when cooling in cold water. So rate of cooling in cold water कितना है आपको वैल्यूज बतानी पड़ेगी क्यों क्योंकि दिस इज फॉर 2 marks. Rate of cooling in cold water is how much 0.217 and rate of cooling in hot water is how much 0.128 degrees Celsius per second. Okay, so once you calculate the rate of cooling in both अब आपने उसको फाइनली बस ये बता देना है कि use your answer to decide how temperature of water in beaker affects the rate of cooling of hot water in the test tube. So rate of cooling in cold water is more than the rate of cooling in hot water. The rate of cooling
in cold water is greater. जी बेटा, यहां तक is it clear everyone? जी, so आपने you have to calculate the rate of cooling in cold water. So rate कैसे निकालते हैं? Change in temperature divided by the total time. Decrease in temperature divided by the total time. This is how we calculate the rate of cooling. ठीक है, सो आपने रेट निकाल के दोनों का यू हैव टू गिव द वैल्यूज बिकॉज दिस इज फॉर 2 मार्क्स, और उसके बाद आपने कंपैरिजन में बता देना कि रेट ऑफ कूलिंग इन कोल्ड वाटर इज मोर. Suggest one improvement to the experimental procedure described in part A and B that allows a more valid comparison to be made between the two rates of cooling. So एक तो बेटा अगर हम टेबल में देखें तो दोनों में जो इनिशियल टेम्परेचर था टेस्ट ट्यूब कूलिंग एंड कोल्ड वाटर, उसका इनिशियल टेम्परेचर 73 था, दूसरे वाले में 75. तो एक तो ये हो सकता है वी शुड यूज सेम इनिशियल टेम्परेचर. सो फर्स्ट वन कैन बी सेम इनिशियल टेम्परेचर्स. ठीक है, suggest one. Okay, what other we can use equal amount of hot water to the test tube. So the amount of hot water to the test tube in both cases, same amount of hot water both experiments. तो एक तो हमारे पास ये भी हो सकता है. ठीक है, अमाउंट क्या है तो वॉल्यूम का भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. सो ये हमारे पास इंप्रूवमेंट है दैट वी कैन डू. सो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा थर्मल से रिलेटेड आ जाता है, एक क्वेश्चन थोड़ा ऑक्सीलेशंस बेस्ड आ जाता है, और एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह का कुछ लाइट रिफ्लेक्शन और इन सब चीजों से रिलेटेड आ जाता है. A student investigates the light reflected from a plane mirror. Figure 2.1 shows a straight line AB. Draw a line from A at an angle of 30 degrees in an anti-clockwise direction from AB. So anti-clockwise ये होती है और clockwise ये होता है. ठीक है, तो उसने यहाँ पे आप क्या करोगे? This line should be more than 10 centimeter. Label the end of the line as point C. Okay, so let's say you're going to place a D. आप एक प्रोटेक्टर इधर रखोगे 30 डिग्रीज पे, आप यहाँ पे एक लाइन मार्क करोगे and you have to make sure that this line should be more than 10 centimeter in length. This line should be more than 10 centimeter long. तो आप बेशक 12 सेंटीमीटर की लाइन कंसिडर कर लो. ठीक है, सो लेट्स से ये मैंने एक लाइन मार्क कर ली. अब वो कह रहे लेबल द एंड ऑफ द लाइन एज पॉइंट सी. ठीक है, सो दिस इज योर, मैंने लगता है ज्यादा एक्सटेंड कर दिया. तो अगर ये लाइन है और लेट्स से ये 12 सेंटीमीटर की लाइन है, ये मैंने 30 डिग्रीज पे ड्रॉ की है,
और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज कहता तो फिर इधर नीचे बनती। सो इसका जो एंड है इसको सी मार्क कर देना। आगे कह रहे हैं मार्क अ पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू डी। अब हमें नहीं पता कि ये ए बी की टोटल लेंथ कितनी है। सो लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर में स्केल से मेजर किया तो ये डी पॉइंट इधर आ गया। So, अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, दिस लाइन मस्ट ऑल्सो पास थ्रू द लाइन ए सी that you have drawn in A1, label with an E the point where the line through D passes through AC. So ये वाला जो पॉइंट है ये E है। अब अगले में वो कहता है द स्टूडेंट प्लेसेस अ मिरर अलोंग द लाइन AC, मतलब ये AC लाइन के अलोंग एक मिरर प्लेस किया विद द रिफ्लेक्टिव सरफेस फेसिंग B। सो इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है इट्स फेसिंग B। Arrange an illuminated slit so that a ray of light passes along the line DE. ओके, सो एक रे है जो ये DE से पास कर रही है। वो कह रहे हैं रे रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर, ड्रॉ नॉर्मल टू द लाइन AC एट E। सो अब E पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है मैंने, नॉर्मल लाइन which is perpendicular to the line AC। सो ये मैं एक और नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो डैश्ड लाइन है ये क्या आ गई, ये नॉर्मल लाइन आ गई। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं लेबल द एंगल बिटवीन डी ई एंड द नॉर्मल यू हैव ड्रॉन विद अ थीटा। तो ये डी ई ये नॉर्मल है, ये जो एंगल है यू हैव टू मार्क दिस एंगल एज थीटा। ठीक है, अब आपने इसको थीटा मार्क कर लिया, मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ थीटा। सो लेट्स से आपने यहाँ पे डी रख के तो इसको मेजर कर लिया एंड इट टर्न्स आउट दैट द एंगल इज 30 डिग्रीज आगे। ठीक है, द स्टूडेंट मार्क्स 2 points P1 and P2 on the reflected line. Remove the mirror and draw the reflected line through P1 and P2. Describe how P1 and P2 are chosen to give as accurate a reflected line as possible. तो ये नॉर्मल है। अब हमने एक और ड्रॉ करनी है रिफ्लेक्टेड रे। सो लेट्स से ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब वो कह रहे हैं कि मार्क 2 points P1 एंड P2। तो अब आपने P1 और P2 पे 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, P1 और ये P2 दूर दूर होने चाहिए। डिस्क्राइब हाउ P1 एंड P2 आर चोजन टू गिव as accurate a reflected line as possible. So points should be further apart, should be far apart, further apart. Points जो है they should not be closer, ठीक है, और their gap should be मतलब more than 4 centimeter. So ये आपके पास this is how. So again आपने you just have to read the instructions carefully, just follow the instructions and you will be able to draw these diagrams. तो एक इस तरह के रे डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द नॉर्मल एंड द मिरर्स पोजिशनिंग। अच्छा देखो बेटा,
उसने कहा है कि ही प्लेसेस द मिरर अलोंग द लाइन AC, मतलब यहां पे मिरर है। ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया है, दिस इज योर मिरर, ठीक है। अब वो आपसे ये कहता है कि अगर ये मिरर है, arranges an illuminated slit so that ray light passes along the line DE। वो कह रहे ये DE लाइन की तरफ से एक रे जाती है, इस पॉइंट पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो। तो नॉर्मल लाइन जो है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द, क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये नॉर्मल लाइन इसके परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। ये जो एंगल थीटा है, ये ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया बाद वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। मतलब ये रे जाके मिरर पे हिट करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, और जहां पे ये रिफ्लेक्टेड लाइन आएगी उस पे आपने दो पॉइंट्स मार्क कर देने, P1 एंड P2, एंड यू कैन जॉइन दीज पॉइंट्स टुगेदर टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड लाइन। बाकी since it follows the angle of law of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. R is also 30 degrees, right? Acha, yes, R is also 30 degrees, same as the value of theta. I hope it's clear to everyone. Okay, so now let's move to the next part. The student repeats the procedure with a ray of light striking the mirror at a different angle. Figure 2.2 shows a second line labeled A dash B dash. On figure 2.2, draw a line from A dash at an angle of 60 in an anti-clockwise direction from line A dash B dash. अच्छा, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे डी रखोगे, पहले 30 पे ली थी, अब 60 पे मार्क करना है। यहाँ पे आपने उसी तरह एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। सो आपने, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स लेंथ इज मोर देन 10 सेंटीमीटर। जितनी पहले ली थी उतनी कंसिडर कर लो। लेट्स से यू टेक 12 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। जहां पे इसका एंड है इसको सी डैश, ये 12 सेंटीमीटर, उसी तरह line should be more than 10 centimeter. Label the end of the line with a C dash. Mark a D dash on the line AB. D dash उधर ही है, ठीक है। और D dash पे वो कह रहा है कि ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर। अब आपने एक बिल्कुल, यू हैव टू ड्रॉ इससे दोगे E dash, ठीक है। ये कह रहा है this line must also pass through A dash C dash. Label point where line through D dash passes through A dash C dash with an E dash. Draw normal to line A dash C dash at E dash. अब यहाँ पे आपने एक दोबारा से नॉर्मल बनाना है। लेट्स से ये नॉर्मल आ जाएगी। ये उसी तरह एक नॉर्मल लाइन, मतलब सेम सारा वही प्रोसीजर है जो आपने पहले यूज किया है। नॉर्मल लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द A dash C dash वाली लाइन, ठीक है।
label. So what if the examiner says clockwise direction? अगर बेटा clockwise कहते था ना तो फिर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते 60 पे, ये क्लॉकवाइज इधर होता फिर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए ऊपर उल्टा उधर बनता है, सो दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? Okay, now label the angle between D dash and E dash and the normal you have drawn with an alpha. So this is your angle alpha. अब वो कहते हैं कि explain one practical precaution that you take to ensure that normal is accurately drawn. तो normal draw करने के लिए normal line should be perpendicular to the surface. Normal should be perpendicular to A dash, C dash, or you can or use सेट स्क्वायर। आप स्क्वायर यूज कर सकते हैं, आप एक सेट स्क्वायर को ऐसे प्लेस करोगे यहाँ पे, दिस इज हाउ यू कैन मेक श्योर। सो ये सेट स्क्वायर यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि फिर ये जो सेट स्क्वायर का एक एंड है वो एक साइड जो है वो ए डैश सी डैश के अलॉन्ग हो जाए। मेजर एंड रिकॉर्ड द एंगल थीटा। सो लेट्स से वी मेजर angle 60 degrees. Theory suggests that alpha is equals to 2 theta state whether your results support the theory. हमारे पास थ्योरी कह रही है अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, अल्फा की वैल्यू आई है लेट्स से 60। अगर लेट्स से थीटा की वैल्यू 30 की जगह मैं अल्फा की वैल्यू 61 कर देता हूँ, चलो मतलब हो सकता है ना इतना एक्यूरेट ना भी है बाज दफा। तो ये 61 और थीटा की वैल्यू आई थी 30, ठीक है। तो देखो बेटा 61 और ये बनती है 60 डिग्रीज, तो ये इक्वल तो नहीं है बट ये ऑलमोस्ट सेम है। सो यस, whether your result supports the theory, yes it supports theory। And so how do we know? Since values are too close, values are too close, ठीक है। सो यू हैव टू गिव द रीजनिंग एज वेल, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया। अगर आप रीजन नहीं दोगे तो फिर आपके पास वो गलत हो जाएगा। और यू कैन से कि इट इज विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर, रीडिंग्स और विद इन experimental error। So you can either write this or you can write this point. Okay, so this is your question number 2. Now let's see question number 3 हमारे पास graph based होता है और question number 4 is always experiment based. So let's talk about question number 3. A student investigates the image formed by a converging lens. The student arranges the apparatus as shown in figure 3.1. Here rays of light, once they travel through the lens, they converge at a point, places a white screen approximately 30 centimeter from the lens, adjust the position of the screen until a sharp image of window in the lab a few meters distance from the lens. Of the
3. 3.1 from the lens to the screen. So you have to measure this length. आप यहाँ पे scale रखोगे and you have to just simply measure the length between these 2 points. So, okay, so we just have to measure the distance x 5.1 centimeter. अच्छा, I hope कि screen और मेरी audio, is it clear everyone? आप सब लोगों को सही से नजर आ रहा है सब कुछ? जी बेटा. I hope it's clear. Let me connect it to another one. अगर यहाँ के सिग्नल्स थोड़े से हो रहे हैं. जी. Is my audio and screen visible? Am I clear? Okay. The distance x shown on figure 3.1 is drawn to a scale of 1/3 full size. Use your answer from A1 to calculate the actual distance from the lens to the screen. अब लेंस से बेटा आपकी exact 5 भी आती है, तो you will write it as 5.0. So please keep this in mind. ठीक है, मतलब you have to, जब उसने 0.1 सेंटीमीटर कहा है, that means कि you have to give your reading to 1 decimal. The distance x shown on figure 3.1 is drawn to a scale of 1/3 full size. जो actual size है ये उससे 1/3 छोटा है. Use your answer from A1 to calculate actual distance. The actual distance is 3 times bigger है. तो 5.1 into 3, so that is 15.3 centimeter. Now, the student rearranges the apparatus as shown in figure 3.2. Switches, so we have a lamp. Switches on the lamp places the lens at distance u, which is 20 centimeter. V, the other 60.5 measures the image distance v from the lens to the screen. ठीक है? Calculate the values of u plus v and uv. तो u और v दोनों की तो वैल्यूज तो दी हुई है कि u की वैल्यू ये है 20.0 और v की ये है. तो u प्लस v किसके इक्वल होगा? 20.0 plus 60.5, that is going to be 80.5. So ये 80.5 uv 20.0 into 60.5, so ये आ जाती है 20 into 60.5, 1210. अब क्योंकि जितनी भी रीडिंग्स है वो 3 सिग्निफिकेंट में दी हुई है तो मैंने भी 3 में कर दी है. ओके. The student repeats part B for values of u 25, 55. The student's results are shown in table 3.1. Add appropriate units to the headers of the last 2 columns. अब देखो u plus v मतलब दो लेंस ऐड हो रही हो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. तो u प्लस v का यूनिट सेंटीमीटर, और जब 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर होता है तो इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो ये हमने ऐड किया था 20.5 प्लस 60.5 80.5, क्योंकि बाकी सारी रीडिंग्स 2 सिग्निफिकेंट में दी हुई है इस कॉलम में, तो मैं इसको भी क्या करूंगा 2 सिग्निफिकेंट में कंसिडर कर लेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी 81. और जो यू वी की वैल्यू है, ठीक है, सो यू वी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1210. 1210. ठीक है. सो आई होप इट्स क्लियर now.
सो ये आपके पास यूवी और यू प्लस वी की वैल्यूज आ गई। अब आपके पास वो कह रहा है कि ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड इन फिगर 3.3 प्लॉट अ ग्राफ ऑफ यूवी ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट u प्लस वी ऑन दी एक्स एक्सिस। तो सबसे पहला काम तो आपने अपने एक्सिस लेबल करने हैं विद देयर यूनिट्स। u प्लस वी इज ऑन दी एक्स एक्सिस और uv इज ऑन दी एक्स एक्सिस। एक मार्क आपको इसका मिल जाएगा अगर आपने एक्सिस लेबल कर ली है। 1 मार्क फॉर दी एक्सिस। 1 मार्क होता है स्केलिंग का। u प्लस वी ऑन दी एक्स एक्सिस 76 से स्टार्ट हो रही है। उसने कहा यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट द एक्सेस फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट। तो जरूरी नहीं कि आप उससे स्टार्ट करो। 76 से स्टार्ट हो रहा है, 81 तक आपके पास वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने बॉक्सेस हैं? 2, 4, 6, 8 and 10। then 2, 4, 6, 8, 10, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। Okay, how many boxes between these 1, 2, 3, 4, 5, 6? अब यहाँ पे 6 बॉक्सेस दिए हुए। लार्जेस्ट रीडिंग है 81 और स्मॉलेस्ट रीडिंग है 76। तो 76, 77, 78, 79, 80, 81। तो मैं 76 से स्टार्ट कर लेता हूँ और 1 का गैप ले लेता हूँ। तो 76, 77, 78, 79, 80 और ये 81। तो आपने more than half cover करना है। So you have to count the number of boxes, फिर उसके accordingly you have to choose the scale। फिर इसी तरह y axis पे 2, smallest reading is how much? Smallest, अच्छा sorry, my bad, I overlooked the reading 62। Thank you for the correction beta। Okay, so smallest reading is 62 and the largest reading was 81। So हमने 60 से 80 का मतलब गैप कंसिडर करना है। 60 से 81। ठीक है, लेट मी करेक्ट द स्केल। ओके, अब अगर मैं लेट से 60 लेता हूं, 60 और 70 और 80, तो वैसे 60 अगर मैं इधर ले लूं, बल्कि मुझे 80 से ऊपर ही जाना है ना एक्चुअली, तो मैं अच्छा 60 से स्टार्ट करूं। 65, 70, 75, 80, 85 और ये 90। अब मोर देन हाफ स्केल कवर होना चाहिए। सो डू वी हैव टू स्टार्ट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द सेम नंबर? नहीं, सेम नंबर से स्टार्ट नहीं करना होता। मतलब बेहतर होता है आप इवन वाला स्केल यूज करो। मतलब जैसे 60 है तो फिर 70, 80 इस तरह के कोई नंबर्स आपके जेहन में होने चाहिए फॉर द प्लॉटिंग। अब हम वाई एक्सिस के लिए देखते हैं। वाई एक्सिस में हमने प्लॉट कर रहे हैं यूवी। लार्जेस्ट रीडिंग है 1210, स्मॉलेस्ट रीडिंग है 933। 1210 और 933। पहले हम नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर ले। वाई एक्सिस पे कितने हैं? 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4,
8, 10. So we have to count these number of boxes. तो आप देख रहे हो मैं पहले एक्सिस में डैशेस मार्क कर रहा हूं 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Okay, how many boxes along the y-axis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boxes given है y-axis के लिए, ठीक है? और अब हमारे पास ये y-axis पे 8 boxes थे, x-axis पे तो हमने सिलेक्ट कर लिया ना, 6 boxes थे वैसे. अब अगर मैं जनरली कंसिडर करूं 12, 10 या 12, 20 ले लेता हूं और 9, 20. 12, 20 minus 920 divided by 8. Okay, so this is not in good scaling नहीं होगी. अच्छा, अब how do we select the scale? Y-axis पे 8 boxes हैं, smallest reading है 933 की, largest reading है 1210 की, ठीक है? अब इससे छोटा नंबर लेना है और इससे बड़ा नंबर, ठीक है? स्केलिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. तो लेट्स से अगर 900 ले लेते हो और उधर से 1220, 20 minus 900 डिवाइडेड बाय 8. सो लार्जेस्ट मैं लेता हूं 1220. मैं 920 भी ले सकता था पर 920 के साथ मेरी एक्यूरेट नहीं आ रहा था तो मैंने 900 ले लेता हूं. तो लार्जेस्ट रीडिंग माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय 8 boxes है divided by 8. So 1220 था, sorry. 1220 minus 900 over 8, we get 40. Sir, is it compulsory to use whole graph like taking a scale? Yes, your graph should be able to cover more than 50%. 50% से ज्यादा कवर हो रहा होना चाहिए बस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो तकरीबन 40-40 का गैप आपने लेना है. तो अगर आपने लेट्स से आप 920 से स्टार्ट कर लो, 40 का गैप ले लो, 960. वैसे मैंने यहाँ पे 900 से 1220 तक का लिया था ना, तो मैं वो भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है? मैं वही कर लेता हूँ जो मैंने स्केल कैलकुलेट की है अभी. तो स्टार्टिंग ऑफ विद 900, 40-40 का गैप ले रहा हूँ, 940, 980, 1020, 1060, 1100, 1140, 1180 और 1220. तो 1 मार्क आपको एक्सेस लेबल करने का मिलेगा, 1 मार्क आपको स्केल का मिल जाएगा अगर आपका स्केल दोनों का ठीक है. अब 1 मार्क इफ यू प्लॉट ऑल द पॉइंट्स करेक्टली, तो एक पॉइंट है जी 81 पे 1210, 81, 80 इधर है, 85 इधर है. So 81, 82, 83, 84, 85. So ये 81, I'll be using a scale for this ताकि मेरे पास easy हो जाए इसको मार्क करने. अब 81 पे 1210 है, 1180 और 1220 के एग्जैक्ट मिडल में मेरे पास क्या आएगा, ठीक है? दैट इज गोइंग टू बी 1200. और 1200 और 1220 के एग्जैक्ट मिडल में क्या होगा, 1210, ठीक है? तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया 1210 वाला, ठीक है? थोड़ा सा मैंने नीचे वैसे हाफ स्मॉल स्क्वायर का मतलब गैप अलाउड होता है, ठीक है? नीचे ओके. सो वी हैव प्लॉटेड दिस फर्स्ट पॉइंट. 62 पे है 933,
62 पहले देखते हैं किधर है। 61, 62, 62, 62 पे है 933, 933 अगेन। सर 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन का कौन सा टॉपिक आ सकता है? अच्छा, वो मैं भी जब क्वेश्चन 4 पे जाऊंगा ना, वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन 4 पे मतलब कौन सा एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है। अब 62 पे हमने 933 मार्क करना है। 900 और 940 के एग्जैक्ट मिडल में है जी 920। 920 और 940 के एग्जैक्ट मिडल में है 930। तो 933 समवेयर इधर ही है। ये मैंने एक और पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है। अच्छा, 65 पे है 988। 65 पे है 988। अगेन 980 और 1020 के एग्जैक्ट मिडल में 1000, और 980 और 1000 के एग्जैक्ट मिडल में 990। और उसने हमें कहा है कि 988। ठीक है। तो 988 कितने पे? 65 पे। तो 65 पे एग्जैक्ट 988। 980 से मैं एक बॉक्स ऊपर करने लगा। ये आ गया। अब इसी तरह बाकी के भी पॉइंट्स हम कर रहे हैं। 72 पे 1090। 72 पे 1090। 1090 इज ऑलमोस्ट वैसे 1100 ही। ठीक है। 72 पे 1090 समवेयर इधर आ रहा है। ये आ गया। और 76 पे 1140। 76 ये पे 1140। ये आपके पास सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लेने हैं। तो 1 मार्क इफ यू put all the points correctly on the graph, and then 1 mark is for the line of best fit. Line of best fit का मतलब ये होता है कि your straight line should pass through most of these points. एक तो हमारे पास, अच्छा इनमें कोई anomalous तो नहीं था। So let's see। तो अगर मैं ये देखो, yes, so this is a correct line. So we can clearly see कि your straight line is passing through 4 of these points. तो ये 4 पॉइंट से लाइन गुजर रही है। एक में से नहीं पास कर रही, जिससे नहीं पास कर रही होती इसको हम अनोमलस कहते हैं। बट ये भी अनोमलस नहीं, क्योंकि जो जिससे पास ना कर रही हो वो बहुत दूर हो, देन यू कॉल इट एन अनोमलस पॉइंट। सो 1 मार्क इज फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का 1 मार्क है। So, sir, what if we have a curve of best fit? तो तब भी आपके पास एक स्मूथ कर्व होना चाहिए। ठीक है। और योर कर्व शुड बी पासिंग थ्रू ऑल ऑफ द पॉइंट्स एज वेल। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, इंडिकेट ऑन द ग्राफ द पॉइंट्स यू यूज शो ऑल योर वर्किंग। अब हमने ग्रेडियंट निकालना। ग्रेडियंट निकालने के लिए वी नीड एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है। पास होगी सर, 6 मार्क्स करेंगे हम, यस। इसके बाद हम लोग पहले एक 6 पॉइंट वाला कर लेंगे क्वेश्चन, और फिर एक और कोई ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। ओके। सो अब हमने वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू यूज 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूं। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 61 पे 920।
यू हैव टू करेक्टली लेबल दीज पॉइंट्स, और आपने दो ऐसे पॉइंट्स यूज करने हैं जो बहुत ज्यादा दूर हो. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो पॉइंट्स दूर होने चाहिए. एज मच फॉर एज, मतलब जितना ज्यादा. एक हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे. ठीक है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 80 पे, यहाँ पे आ रहे हैं 80 पे. लेट्स रीड द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस. हमें स्केल की जरूरत नहीं है. मैंने दो पॉइंट्स यूज करने हैं ग्रेडियंट के लिए, और आपने ये ट्रायंगल मेथड उसे शो करना है एग्जाम में. ठीक है. सो यू हैव टू शो दिस ट्रायंगल मेथड एज वेल. ये आ गया. और 80 पे ये क्या आ रहा है, ये आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रीड कर लो. 1180 है, और 1180, और ये एग्जैक्ट इसके मिडल में, मिडल से थोड़ा सा ऊपर है वैसे. तो 1200 माइनस 1180, ये 40 का गैप था. 40 डिवाइडेड बाय 5 इज 8. तो ये 8 का है. 1 2 3 4, 8 4s are 32. So 1180 plus 32, we get 1212. तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये हम यूज करेंगे ग्रेडियंट के लिए. 61 920, 80 पे 1212. Mark the points as x1 y1, x2 y2. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 minus y1 over x2 minus x1. 1212 minus 920 whole divided by 80 minus 61. तो ये आप कैलकुलेटर में पुट कर दोगे. 1212 minus 920. ठीक है. Divided by 80 minus 61. T minus 61, we get 15.36. 15.36 और है ग्रेडियंट, और इसको आप राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट में लिख लो 15.4. सो ये आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा. ठीक है. ओके. अब अगले में, two quantities can be considered to be the same within the limits of experiments accuracy. ठीक है. If their values are within, so if their values are within 10% of each other, the gradient of your line calculated in E is numerically equal to the focal length f of the lens in centimeter. So the focal length that we got was 15.3 centimeter. Compare your values of f obtained in A2 with the values of the gradient obtained in E. State if your two values can be considered to be the same. So you have to compare your values of f obtained in A2. Okay. अब जो हमने कैलकुलेट किया वो आई है 15.4, and the actual value is 15.3. ठीक है. तो now we have to check the error in this. तो ये उसने कहा है within 10% हो. तो एक f1 is 15.3 सेंटीमीटर, f2 is 15.4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो how do we check the percentage error? f2 minus f1 over f1. 15.4 minus 15.3 into 100 भी करना, because we have to calculate the percentage error. Times 100%. So 15.4 minus 15.3 divided by 15.3. So 0.1
over 15.3 into 100 times 100% gives us 0.65%, which is just 0.7. तो उसने कहा है कि state of your two, if your two values can be considered to be the same. Yes, both values are same as percentage error is less than 10%. तो जो परसेंटेज एरर हमारा है वो 0.65% है और जो अलाउड है वो 10. अगर 10% से ज्यादा आ जाती है एरर तो फिर इसका मतलब है वो वैल्यूज को या रिलेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता. ओके. नाउ when measuring the object and image distance with a meter rule, it is important to avoid line of sight parallax error. State how student avoids parallax error when doing the experiment. We have already discussed. Keep eyesight perpendicular to the reading. ठीक है? Okay. Next, describe a technique that student uses to make sure that images on the screen is as. So can we take out the average of f1 and f2 and then solve f2 minus f1 divided by the average of those two values times the 100. अच्छा, you can use the average value as well, but आपके पास ऑप्शन भी ये हो सकती है आप f1 या f2 की भी वैल्यू यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दोनों तरह से इट्स करेक्ट. Okay, so describe a technique that student use to make sure the image on the screen is as sharply as focused. ये जो स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म हो रही है यहां से रेज आ रही है, लेंस पे हिट कर रहा है, आगे जा रहा है. ये सो ये इमेज है. अच्छा खैर, दिस इज हाउ द इमेज इज formed on the screen. ठीक है, so you can just move the screen slowly forward or backward until you obtain a sharp image. The screen को आपने आहिस्ता आहिस्ता से आगे पीछे करना है जब तक आपके पास एक sharp image नहीं produce हो जाती. But you have to do it gradually. So move the screen slowly forward and backwards until sharp image is obtained. ठीक है, so you can just simply move the screen slowly forward and backwards until a sharp image is obtained. So this is a question number 3 जो आपको ग्राफ बेस्ड आता है और उसमें you have to be careful about the axes, the scale. You plot the points correctly onto the graph. ठीक है, and बाकी the rest is just the same. अच्छा, एक ही क्वेश्चन और है. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ग्राफ. ठीक है, इसकी तरफ हम थोड़ा सा बाद में भी आते हैं. पहले हम थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड वाले कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं. ठीक है, अभी हमने क्योंकि ये अभी किया यही इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3, तो इसी से रेलेवेंट हम एक एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. ओके. Student has a converging lens and needs to determine its focal length. Plan an experiment that will enable the student to measure an accurate value for the focal length f of the lens, where u is the distance. U is the distance between an object and the lens, and v is the distance between the focused image of the object and the lens. Figure 4.1 shows some of the apparatus that is available. We have a converging lens. So left पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है
The lamp is connected to a power supply and can be switched on and off as required. Write a plan for the experiment. In your plan, you should list any additional apparatus needed. Draw a diagram of arrangement of apparatus labeling U and V. Explain briefly how to do the experiment. State the steps taken to obtain a short, focused image. Explain how to use your readings to determine the value of F. ठीक है? अब U is the distance between the lens and the object. Object ये है. So this is U. और अब आपने यहाँ पे आगे कहीं पे एक स्क्रीन प्लेस करनी है. स्क्रीन हम रखेंगे जिसके ऊपर यहां से रेज आएंगी और आगे जाके स्क्रीन पे ये आपके पास एक इमेज फॉर्म होगी. सो दिस इज योर इमेज and the distance between the lens and your screen is labeled as V. ठीक है? Okay. Now, how are we going to measure these lens? With the help of a meter rule. So we are going to use a meter rule to measure the distances between these. So I can just simply show a meter rule as well. Okay, so we have a meter rule. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज कहता होता हूं कि सबसे पहले हमारे पास आता है डायग्राम एंड एपरेटस. तो डायग्राम में एक तो हमने स्क्रीन शो करनी थी, वो स्क्रीन हमने इसको शो कर दिया. एक आप मीटर रूल और जो भी डिस्टेंसेस वगैरह आप यूज कर रहे हो वो आपने शो कर देने. ठीक है? ओके. एंड यू कैन ऑल्सो लेबल यू एंड वी करेक्टली. अच्छा, डायग्राम एंड ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में पहला है डायग्राम ऑपरेटर्स, दूसरा है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में हमारे पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल्स. ये तीन वेरिएबल्स हैं जो हमने बताने हैं. ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे हम एक्सपेरिमेंट में खुद चेंज करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट के चेंज होने से खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं. कंट्रोल्ड वेरिएबल है कि जिसको हम फिक्स्ड रखेंगे. ठीक है? ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम करेंगे u को. u which is the distance between lens and the card. ठीक है? जहां पे मतलब ये कार्ड है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस. ठीक है? u के बारे में उसने u इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस. डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जब आप u चेंज करोगे तो v विल ऑटोमेटिकली चेंज. ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्क्रीन. ठीक है? और कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? कंट्रोल्ड वेरिएबल ये हो सकता है कि सेम अमाउंट
of power supply by lamp. ठीक है? And you have to keep the distance of lamp from the object same. नहीं बेटा, इट्स बेटर आपने, क्योंकि अभी हम मेथड में उसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इट्स बेटर दैट यू राइट द इंडिपेंडेंट dependent on the controlled variables. So same amount of power supplied by the lamp, or another one can be distance between lamp and object. So keep these variables as constant or control them. So position of lens को सेम नहीं रखेंगे. अच्छा, अगर आप लेंस की पोजीशन को फिक्स कर देते हो ना, तो फिर आपके पास बी की वैल्यूज चेंज नहीं होंगे. अभी हमने जो एक पीछे ग्राफ वाला एक्सपेरिमेंट था वो इसी पे बेस्ड था. उसमें यू चेंज कर रहा था, वी की वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, राइट? ये भी यही एक्सपेरिमेंट था ना. तो यू चेंज करने से वी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था. तो वी हैव टू डू द सेम है. हमने यू चेंज करना है, वी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, एफ आपके पास सेम आएगी वैल्यूज, फोकल लेंथ जो है. ठीक है? तो पहले में डायग्राम ऑपरेटर्स, दूसरे में वेरिएबल्स, थर्ड में वी हैव टू एक्सप्लेन मेथड. मेथड के लिए आपने उसको बताना होता है कि आप हर वेरिएबल को मेजर कैसे करोगे. सो मेजर u and v थ्रू मीटर रूल. सो आप मीटर रूल का बताना जरूरी है. अगर तो आपने ड्रॉ करके लेबल किया हुआ है तो वेल एंड गुड, ठीक है? और अगर आप लेबल नहीं करते हो तो फिर वो गलत तो हो जाता है. सो मेजर यू एंड वी थ्रू द मीटर रूल. अच्छा वी, अच्छा, मूव स्क्रीन स्लोली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड to obtain sharp image. So you have to move the screen forward and backwards slowly to obtain a sharp image. ठीक है? और repeat experiment for 6 different values of u and measure, मतलब 6 डिफरेंट u की वैल्यूज के लिए आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे. Can we write about that? We should move the screen until the focused and upright since it was inverted before. आप बस sharp image का word use कर लोगे ना बेटा, तो वो काफी होगा. उसमें ये inverted वगैरह उसकी properties हमें बताने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी. ठीक है? इस वजह से. Okay, repeat experiment for 6 different values of u and measure corresponding values of v. Corresponding values of v. तो ये आपने इसको बता दिया. ठीक है? फिर यू कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन अ डार्क रूम. ठीक है? परफॉर्म experiment in a dark room. Okay, so this is the method. मेथड के बाद आ जाते हैं टेबल. अब देखो बेटा, टेबल में एक तो हम लेंगे u की वैल्यू सेंटीमीटर, v की वैल्यू सेंटीमीटर,
अब देखो यू वी भी चाहिए और u प्लस वी भी चाहिए। u प्लस वी सेंटीमीटर्स, यू वी सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में आपने f की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। f इज फोकल लेंथ विच इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आपने ये टेबल भी दे देना है उसे विद करेक्ट हेडिंग्स, और टेबल के बाद हमारे पास आ जाता है रिजल्ट एनालिसिस। रिजल्ट एनालिसिस, और देखो रिजल्ट एनालिसिस में हमें ग्राफ तो ऐसे कोई प्लॉट करने की मतलब जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, सो काइंडली एक्सप्लेन v1 v प्लस u पर्पस। अच्छा ये देखो जो फॉर्मूला है ना, ये यूज फॉर्मूला ऑफ f इज इक्वल्स टू u v ओवर u प्लस v। तो क्योंकि फॉर्मूला के अंदर u प्लस v की वैल्यूज अलग है और uv की वैल्यूज मतलब u प्लस भी हो रहा है और u v है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने दोनों को सेपरेटली कर लेना। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एंड लास्ट में टेक एवरेज फॉर ऑल 6 वैल्यूज ऑफ f, क्योंकि 6 f की वैल्यूज आएंगी, एंड में आप उसका एवरेज ले लोगे और एवरेज लेने के बाद आपका यही आंसर है जी। What if we fix u and move screen to change v and get different values of f? देखो बेटा, मैं u को फिक्स कर देता हूं तो फिर जो v है ना वो भी फिक्स्ड ही है ना, क्योंकि जो उसने इमेज प्रोड्यूस करनी है उसने एक फिक्स्ड पॉइंट पे डिस्टेंस पे करनी थी, तो वो डिस्टेंस उसका फिक्स्ड रहेगा। तो आपको u चेंज करना ही पड़ेगा, तभी v की वैल्यूज चेंज होंगी, अदरवाइज v की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी पर। ठीक है, क्योंकि जो फिक्स्ड इमेज आनी थी वो फिर एक ही उस पे आएगी। दैट्स इट, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, सो डायग्राम और एपरेटस, फिर वेरिएबल्स, फिर मेथड। सर इजंट द फॉर्मूला uv ओवर u प्लस v? यस, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया एक्सीडेंटली। ठीक है, सो uv ओवर u प्लस v वाज द फॉर्मूला। सो अब आपने वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर देनी है। ठीक है, या पुट रीडिंग्स इन द फॉर्मूला फॉर एंड कैलकुलेट f and substitute and put values of u and v। ठीक है, ये समझ आ गया? So this is how you're supposed to do a 6 mark experiment। ठीक है, आपने हर उसमें यही चीजें फॉलो करनी है। सर मींस वी हैव टू चेंज यू एट द पोजीशन ऑफ स्क्रीन। यस, जब आप यू चेंज करोगे तो वी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, हम ये वाला करते हैं। ठीक है, a solar cell is a device that can generate electrical power when light falls on it. You are given a solar cell connected to a fixed resistor as in the incomplete circuit shown in figure 4.1. Plan an experiment to investigate how brightness of the light falling on the solar cell affects the electrical power output of the solar cell. So brightness of the light falling on the solar cell, ठीक है, affects the electrical power output of the solar cell। ठीक है, the power of the cell can be found using the equation power is equals to, so the power of the cell can be found using the equation power is equals to current into voltage,
Following apparatus is available in addition to the apparatus shown in the circuit diagram. A lamp connected to a power supply, a meter rule, a voltmeter, ठीक है, okay, an ammeter, connecting leads, other apparatus normally available in a school laboratory can also be used. ठीक है, मीटर रूल और मीटर रूल उसकी लेंथ वगैरह मेजर. Other apparatus normally available in a school lab can also be used. In your plan, you should explain how you will vary the brightness of the light falling on the solar cell. Show how voltmeter and ammeter are used. You may draw on figure 4.1 to aid your explanation. State any variable that you will control. Draw a table with column headings. अच्छा, पैटर्न वही है. सबसे पहले डायग्राम और एपरेटस. डायग्राम एंड एपरेटस. देखो बेटा, अब आपके पास ये एक सोलर सेल है, ठीक है. लाइट इस पे फॉल कर रही है सोलर सेल पे, ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव. यू हैव कनेक्टेड अ फिक्स्ड रेजिस्टर अक्रॉस दिस, ठीक है. अब आपने एक एमीटर कनेक्ट कर देना है. दिस इज एन एमीटर. Ammeter is used to measure the current, and ammeter is always connected in series to measure current, and you connect it in series. अच्छा, power of cell calculate करनी है, means you have to calculate the power of the voltage of the cell. तो एक voltmeter connect कर दो in parallel or across the cell. So voltmeter connected in parallel, ठीक है, and it is used to measure its voltage. ठीक, ओके. अब ये क्या है? दिस इज द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दिस सोलर सेल. अब मैं इसके आगे एक लैम्प कनेक्ट कर देता हूं. दिस इज द सिंबल फॉर अ लैम्प. लैम्प का पर्पस क्या होता है? इट जनरेट्स लाइट, ठीक है, ओके. अब आपने यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट कर दो. दिस इज द करेक्ट सिंबल फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टर. एंड साथ में आपने इसको एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है. तो वी कैन यूज, ठीक है. सो ये जो मैंने सिंबल ड्रॉ किया, दिस इज फॉर अ पावर सप्लाई, और ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टर. अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर मैंने लैम्प के साथ सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है? ताकि मैं वेरिएबल रेजिस्टर की जब रेजिस्टेंस को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, तो उससे लैम्प से जो लाइट निकल रही होगी उसकी ब्राइटनेस में फर्क पड़ेगा. अब पहला तो हो गया. दूसरा आ जाते हैं वेरिएबल्स. सबसे पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल जिसको हम चेंज करेंगे. तो रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. तो रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है, डिनोटेड विथ आरवी, और इसका यूनिट होता है ओहम. इससे क्या होगा? और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइट इंटेंसिटी ऑफ लैम्प. लाइट इंटेंसिटी
of lamp is also an independent variable, क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो उससे लैम्प की जो लाइट इंटेंसिटी है वो चेंज होगी। अब दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखते हैं कौन कौन से होंगे। सो डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल एंड करंट इन द सोलर सेल, ये दोनों डिपेंडेंट है। वोल्टेज अक्रॉस सोलर सेल या फिर डिनोटेड विद वी, करंट इन सोलर सेल। ठीक है, करंट इन द सोलर सेल इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब उसने हमें कहा हुआ था कि brightness of light falling on the solar cell, how you will vary the brightness of the light falling on the solar cell। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होंगे? voltage and current supplied by the power supply, voltage and current supplied अच्छा लाइट इंटेंसिटी ऑफ लैम्प। सो ब्राइटनेस ऑफ लैम्प जो है वो चेंज होगी जब आप वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज करोगे। तो ब्राइटनेस of lamp is also an dependent variable, बट मैं उसको लिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि ब्राइटनेस इज बेसिकली द लाइट इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। सो कैन वी यूज नंबर ऑफ सेल्स सीरीज एज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग द ब्राइटनेस? तो नंबर ऑफ सेल्स भी आप मतलब चेंज कर लोगे तो पावर सप्लाई चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेहतर और आसान तरीका होता है वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर लो, क्योंकि अगर आप सेल वगैरह करोगे तो यूल हैव टू डिस्कनेक्ट द सर्किट एवरी टाइम, और बार बार यूल हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट। सो ये वेरिएबल्स हो गए। थर्ड पे अब हम आ जाते हैं मेथड। अब मेथड में हम उसे क्या बताएंगे? हम उसे ये कहेंगे कि सेट वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है, एट द स्मॉलेस्ट रीडिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने स्विच भी एक कनेक्ट करना है ना, मतलब ऑन ऑफ भी तो करना है सर्किट अपना। सो दिस इज अ स्विच एज वेल। ठीक है, ओके। सो सेट वेरिएबल रेजिस्टर at 10 ohm and turn on switch। ठीक है, स्विच ऑन करोगे, द light from the lamp falls on the solar cell, light from lamp falls on solar cell and note voltmeter and ammeter reading। अच्छा, आप उसको साथ ही साथ ये भी बता दो कि एमीटर ammeter connected in series and voltmeter connected
in parallel across the lamp. ठीक है सर, इज इट अ फिक्स्ड रेजिस्टर? देखो बेटा, फिक्स्ड रेजिस्टर तो दूसरे वाले सर्किट में है ना, वेरिएबल रेजिस्टर तो उस वाले सर्किट में है जिस सर्किट में लैम्प कनेक्टेड है उसके साथ सीरीज में। तो जब आप इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो लैम्प से निकलने वाली लाइट वो चेंज होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड इन parallel across the lamp. You measure the values of the voltage and the current through the voltmeter and the ammeter. Light from lamp falls into and note voltmeter and ammeter readings. फिर आप उसको ये कहोगे increase resistance of variable resistor by 10 ohms. ठीक है, for 6 set of readings. 6 set of readings. Or 6 set of readings. Measure corresponding values of V and I. Measure corresponding values of V and I. अब मैंने थर्ड मेथड हो गया सारा। अब हमने उसको क्या बताना है, टेबल देना है, और टेबल के बाद मैंने उसे लास्ट में रिजल्ट एनालिसिस। तो अब हमारे पास जो हम चेंज कर रहे थे, वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस थी, उससे निकलने वाली जो लाइट इंटेंसिटी थी लैम्प की वो चेंज हो रही थी। इंटेंसिटी का यूनिट वैसे होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी आ गई। इंटेंसिटी से तो वैसे बेहतर ही है कि आप वोल्टेज और करंट, ठीक है, और दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पावर ऑफ द सोलर सेल। तो पावर ऑफ द सोलर सेल शुड बी इन वॉट। तो ये वाला अगर आप नहीं भी लिखते हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो पावर तो हमने उसको अब रिजल्ट एनालिसिस में हम उसे बताएंगे। रिजल्ट एनालिसिस में, ठीक है, पुट रीडिंग्स ऑफ आई एंड वी, पुट रीडिंग्स ऑफ आई एंड वी in formula to calculate power, current into voltage। ठीक है, और रिजल्ट एनालिसिस में आपने उसको ये भी बताना है कि एज वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, brightness of lamp decreases, hence the power। बाकी आप उसको यही सिंपली ये कह दो कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ पावर on the y-axis against the brightness or the intensity on the x-axis and do the comparison. या फिर use the table to see the effect of increasing the brightness of the lamp on the power। intensity की जगह यहाँ पे ना आप brightness ही कर देते हैं ऐड। ठीक है, और brightness का हमें brightness of the lamp। ठीक है, और लास्ट में रिजल्ट एनालिसिस में आप ये भी बता दो कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ पावर ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट brightness of lamp on the x axis।
ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट सिंपली मेक अ कंक्लूजन। अच्छा, क्योंकि उसने कहा हुआ था ना कि plan an experiment to investigate how brightness on solar cell affects the electrical power output of the cell। तो इसका मतलब यह है कि जो brightness of lamp है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा, क्योंकि हम बेसिकली रिलेशन देखना चाह रहे थे ना कि ब्राइटनेस ऑफ लैम्प चेंज करने से पावर ऑफ लैम्प पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो पावर ऑफ लैम्प कैन बी पावर ऑफ सोलर सेल, सॉरी, power of solar cell, which is P and watt, is your dependent variable। जी बेटा, sir, how do we measure the brightness of the lamp? ठीक है, अच्छा, brightness of the lamp, basically you measure the intensity of the lamp, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ द लैम्प का मतलब मेजर करने का फॉर्मूला वैसे तो होता है पावर ओवर एरिया, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपने बस उसको जनरली मतलब ये बता देना, दैट्स इट। ठीक है, कि यू विल मतलब चेंज द लाइट इंटेंसिटी, और लाइट इंटेंसिटी को जो है ना यू आर गोइंग टू मेजर इट। ठीक है, और बाकी उसने मार्किंग स्कीम में भी आपको इस चीज पे नहीं मतलब दिया हुआ, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी और ब्राइटनेस दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ, एलडीआर पे सवाल आ गया था आप लोगों को सवाल एग्जाम में? जो P2 था, P2 में एलडीआर पे कोई क्वेश्चन आया था? यस, तो फिर इसके मतलब चांसेस कम है, बट ये है कि मैंने आप लोगों को एक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वाला वैसे समझाना था कि जिसमें आप लोगों को सर्किट को कैसे सेटअप करना है, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस 6 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें 2 एक्सपेरिमेंट्स और हैं, ठीक है, और एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और है। तो now I want you all to attempt these questions yourself. I'll share their marking scheme as well. मैं ये शॉर्ट PDF भी शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई और कंफ्यूजन होगी तो बेटा आप लोग मेरे मुझे मैसेज कर देना।